Hello everyone, good evening. We will be starting our live session shortly. Hello Ram, Hi Poonam. good evening. How are you? Good evening. I'm good. How are you? I'm also good. Excited for the session? Sorry? Excited for the session? Yes. Excited and a little bit nervous also. I know you and I know you will be very, very great. So let's begin. I'll give a quick introduction and then you can start. Okay. So Okay, hello sure. everyone. Sorry we are 2-3 minutes late. So meet Mr. Ramkumar Soni. He's a holistic counselor and therapist at Touching Life Welfare Trust. To briefly describe about Ramkumar Soni, he's a graduate in psychology. He's also a certified art-based therapist, and hypnotherapy practitioner, and transactional analysis practitioner. He is also certified from Mind Body Education College, Australia, in chair yoga instruction, holistic counseling, holistic human development, meditation teaching, autonomic nervous system realignment, and many more. So this was like a brief introduction about him, and I will, hand over to Mr. Ram to continue and speak about affirmations and its power in our life. And yes, so we are very, very, very excited about it. So Ram, up to you. Yes. Thank you so much Poonam. मतलब honestly बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसे कि कोई और हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा है ओके सो मतलब जब मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ उतना मजा नहीं आता है और सुनना और बोलते जाओ होता है कि यस आई हैव डन सो मेनी थिंग्स कि so thank you so much for a very warm welcoming and giving me this opportunity at the Touching Lives platform to share my experience, my learning about the affirmations. So thank you so much, the participant who have joined this online live session. So basically, I'm going to share about affirmation. So basically, affirmation how it have helped me personally and how the affirmation I'm practicing in my everyday of life. And also, I will share a little bit about the science behind it, and I will share some uh, history and the tools and techniques that how you can use the affirmation. And after that, at the end of my sharing, if you have any kind of question or if you have any doubt, or if already you are practicing affirmation, so and if you want to ask anything you can ask. If I can able to answer that, I will sure definitely going to answer. So first I want so okay there are most of the people who are saying hi Ram bhaiya, hi. So hello everyone, namaste, and hi to everyone. Okay, so just I want before we begin this affirmation live session, I just want from the participant who have joined this live session. So you can just write in the comment box that what kind of affirmation you follow for your own self. You can write anything which you practice, or maybe some word which you currently right now thinking in this moment. So just write that. So just for uh, understanding that how many people are knowing that what is affirmations.
I'm healthy. Yes, I'm healthy. Yes. So what about people who don't know about affirmations? What can they write? Let them think, Napunam. Okay. Mm-hmm. You have 1 minute, huh? You can think and write the one affirmation you use for your own self. Let's say I give you this example. Let's just I use affirmation for my own self that I believe in the process of life. Okay, I say this affirmation every day in the morning, and personally, this one affirmation is helping me. There are more affirmation which I will share. So you can just write your affirmation which you follow, which you use for your own self. I'm thinking positive. Yes. Thank you. I'm confident. Yes, yes. I'm confident. I'm the energy of love. Oh. I'm abundance. Yes, I'm abundance too. Okay, thank you so much for the some examples. Okay, so thank you so much for that example. So first, I explain you that key how affirmation. Okay, in the current moment in the 2021, how affirmation are used in many places. So if you have a notice, okay, if you have some observation that there are on a many place people are using affirmations. Like I give you the example, if you see on some website, okay, so if you will enter in that website, okay, so they use some kind of affirmation for their own company, for their own business. If you see there are no many t-shirts people used to wear. I'm a magical, I'm a confident, I'm strong, okay. And then after that I can say um, there are many actors or celebrities, they use affirmation in their branding, in their anything like for they do branding. So for that they use affirmation. So basically nowadays affirmation are as a tool, as a technique where many people are using that and they are applying in their own life. And why they are applying? Because it's helping them to fulfill some of the things in their life. So this is just simple example that how affirmation nowadays people are using, they are affirming for their own self. Okay, so basically what is affirmations? Okay, so affirmation is a basically a type of tool where let me I explain it in the very simple word. So basically affirmation is a technique and tool which you can it's basically it's all about that you very consciously you form a statement, positive statement for your own self to make you feel positive, make you feel self empowered. So basically it will help you to think positive, feel motivated, feel more encouraging, confident, more strength. So basically this so what happened, तो basically क्या होता है इसमें कि let's जो ये एफर्मेशन क्रिएट जब हम करते हैं ना, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि वी कीप आवर सेल्फ वेरी कॉन्शियस.
सो जो एफर्मेशन, जो वर्ड हम चूज करते हैं उसको हम बहुत कॉन्शियस होकर चूज करते हैं, ना कि जस्ट अब्रप्टली एंड बिना सोचे समझे कुछ भी वर्ड उठा लिया एंड वी आर जस्ट यूजिंग फॉर ओन सेल्फ। ओके, वी थिंक वेरी केयरफुली कि बेसिकली लेट्स से आई गिव यू द वन एग्जांपल कि लेट्स से मेरा एक कोई एक वीकनेस है, लेट्स से कि आई फील वेरी टायर्ड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अपोजिट एक ऐसा एफर्मेशन क्रिएट करता हूँ जो मुझे उसके अगेंस्ट स्टैंड होने में हेल्प करता है। लेट्स से कि इफ आई फील टायर्ड, ओके, so I can say everyday affirmation like I'm feeling energetic and I'm feeling energetic. Okay, this is just a short example. Okay, and when I repeat it every day, every day, every day, it helps me, to feel the energetic energy in reality. Okay, so basically, what happen affirmations? You create a statement, positive statement, which stand against your the unwanted feeling and any thought and anything. So the way which we create affirmations. Okay, and I give you the history of this affirmation. So basically ये जो affirmations है ये आया कैसे? ओके, तो किसी ने ये टूल मोस्टली जो भी चीज यहाँ पे इस वर्ल्ड में आया है किसी ने उसको इन्वेंट किया है, किसी ने उसको डिस्कवर किया है। ओके, या किसी ने उसको क्रिएट किया है। तो बेसिकली तो जो अपने क्या कहते हैं, जो फ्रेंच के जो साइकोलॉजिस्ट थे एंड एक एमली करके एक क्या कहते हैं केमिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था, तो उनका एक हॉस्पिटल्स था तो जहाँ पे ना बहुत सारे पेशेंट हुआ करते थे। ओके, एंड वो एक बार क्या कि उन्होंने ट्राई किया कि जब वो मेडिसिन देते थे ना वो पेशेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि यूज सम ऑफ द स्टेटमेंट फॉर योर ओन सेल्फ। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल है, उन्होंने ये दिया था कि आई फील बेटर एवरी डे, बेटर एंड बेटर। ओके, तो उन्होंने इस टाइप का एक एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। एंड जब वो जो पेशेंट्स थे, जब वो मेडिसिन खा के जो एफर्मेशन उनको ऐसा टाइम दिया गया था कि यू हैव टू से दिस ऑन दिस टाइम ये एफर्मेशन, एंड उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे वो पेशेंट ये एफर्मेशंस को एवरीडे बोल रहे हैं उनके जो भी वो जिस भी इलनेस के लिए वो वहां पे थे वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सो वहां से ये ड्राइव होते हुए एफर्मेशन आया एंड अभी इसका ऐसे साइंस बेस भी बहुत सारा रिसर्च है कि ये जो एफर्मेशन है ये बहुत ही वर्क करता है। एंड ओके, सो अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, और अदरवाइज वी कैन गो अहेड। So I have a question. यस पूनम। I have read somewhere that affirmations have effect on our body, mind, and soul. So can you please explain about it shortly? सॉरी पूनम, कैन यू आस्क मी अगेन तो द क्वेश्चन? मैंने कहीं रीड किया है कि एफर्मेशंस के अपने बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे इफेक्ट होता है. सो व्हाई इट इज? हम्म। सो कैन यू ओके। एक्सप्लेन अबाउट इट? हम्म। So as we there are people who know and some of the people who don't know that if you know that our mind and body is connected. Okay, so when we make a positive affirmation, okay, so what happens when we make positive affirmation, and when we constantly repeat it, what happens, it get practice and it go in our subconscious mind। तो हमारे subconscious mind में जाके क्या होता है, एक स्टोर हो जाता है। एंड जब वो स्टोर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा बॉडी एंड माइंड उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। लेट्स से कि आई एम फीलिंग फिट, आई एम एनर्जेटिक। ओके, तो ये जो एफर्मेशन में लेट्स से मैं 1 मंथ से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, एंड एक मोमेंट ऐसा आता है कि ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन एंड जो बॉडी है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम फीलिंग एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग। एंड ऑटोमेटिकली वो जो मेरा अंदर का एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली मुझे हेल्प करता है स्ट्रांग एंड एनर्जेटिक फील करने में। एंड व्हेन वी फील एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली हमारा जो सोल है वो एकदम हैप्पी रहता है एंड वी फील हैप्पी। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन पूनम।
Yes. Okay. Thank you, Ram. So okay. Thank you, Puna. Okay. So now I share you कि basically मैं share करता हूँ कि क्यों कुछ कुछ एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं. ओके. देयर आर एफर्मेशन जो लोग यूज तो करते हैं बट वो काम ही नहीं करता है. सो बेसिकली फिर वो क्या होता है, सिंपल, अगर वो एफर्मेशन काम नहीं करता तो लोगों का बिलीफ उस पर नहीं रहेगा. ओके. और जब बिलीफ नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स वो नहीं बिलीव करेंगे कि वो वर्क करता है. ओके. एंड या देर आर मेनी पीपल जिनको नहीं पता है कि एफर्मेशन करके भी कुछ वर्ड होता है, एंड जब उनको पता चलेगा, आई एम श्योर जब वो यूज करेंगे तब जाके उनको पता चलेगा वो वर्क करता है कि नहीं करता है. तो बेसिकली एफर्मेशंस जो स्टेटमेंट हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो वर्क इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम वो जो स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होता है. ओके. तो लेट्स से कि मैं जस्ट एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एफर्मेशन खुद के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आई वांट टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन. ओके. एंड मेरी रियलिटी ये है कि मैं ठीक से एक दिन का जो फूड है वो भी नहीं खरीद सकता, और मैं एफर्मेशन ऐसे क्रिएट किया हूँ कि मुझे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना है, जो कि अनरियलिस्टिक है. ओके. सो मुझे जो एफर्मेशन क्रिएट करना है वो ऐसा क्रिएट करना है जो मेरे अभी रियलिटी में है. लेट्स से कि अब मैं रोज का फूड अर्न नहीं कर सकता. ओके. मैं नहीं. So I can create an affirmation कि I'm capable of to earn the money to eat my everyday of food. Okay, तो this is, तो जब मैं ये affirmation बोल रहा हूँ ये मुझे बहुत लाइट फील करवा रहा है. ओके. सो व्हेन यू विल फील लाइट, यू विल फील कनेक्टेड. वो जो affirmation हम क्रिएट करते हैं खुद के लिए उसके लिए हम कनेक्टेड फील करते हैं. हमको स्ट्रांगली जो हमारा सोल है हमको गाइड करता है, यस ये जो affirmation है दिस इज परफेक्ट फॉर मी. जो वो मैं बोला कि आई एम अ वर्ल्ड रिच, मुझे कनेक्टेड ही फील नहीं हो रहा उसके साथ. ऐसे लग रहा है कि जस्ट मैं हाँ नाम के लिए बोल रहा हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा एफर्मेशन वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, इन द प्रेजेंट होना चाहिए, एंड जो हमारा वीकनेस है, जो हमारी कमजोरियां है उसके अगेंस्ट होना चाहिए. ओके. सो इसलिए एफर्मेशन वर्क नहीं करता है. सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल कि ये जो एफर्मेशन से वर्क कैसे करता है. अभी तो बताया कि वर्क क्यों नहीं करता है. ओके. अभी मैं आपको शेयर करता हूँ कि वर्क करता है कैसे. ओके. सो बेसिकली जब हम एक एफर्मेशन खुद के लिए क्रिएट करते हैं, ओके, तो क्या होता है जब हम उसको कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रेन में बोलते हैं. लेट्स से मैं एग्जांपल्स दे के ही बोलता हूँ. लेट्स से कि मैं मेरा खुद का एग्जांपल्स देता हूँ. ओके. सो बेसिकली इन द एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, ओके, आफ्टर टेकिंग बाथ, सो मैं आई प्रैक्टिस लाइक दिस. ओके. तो मैं जस्ट टेम्पल के, जो मेरे घर पे मंदिर है, मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ एंड आई जस्ट प्रे हैंड जोड़ के कि आई एम अपॉर्चुनिटी. ओके. तो मैं जस्ट ऐसे बोलता हूँ कि आई एम अपॉर्चुनिटी. एंड व्हेन आई से दिस एवरी डे, वो क्या होता है, एक मेरा न्यूरल पाथ बन गया, मेरे ब्रेन में एक कनेक्शन बन गया है. क्या होता है कि जब मैं उसको नहीं भी बोलता हूँ ना, किस दिन में भूल गया, ऑटोमेटिकली मुझे रिमाइंड करता है वही टाइम पे कि यू हैव टू से योर दिस एफर्मेशंस. ओके. एंड आई हैव नोटिस कि ये जो एफर्मेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब एफर्मेशन बोलते हैं तो सडनली वो रातों रात मैजिक हो जाता है. ओके. हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको हमारे लाइफ का एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है ताकि हम इसको एवरीडे फॉलो करें. एंड एक मोमेंट ऐसा आता है कि योर अंदर से एक एनर्जी बूस्ट होता है. ओके. एक आपको पावर मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है कि जो भी आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आप उसको ग्रेप करो, उसको पकड़ लो, ना कि उसको छोड़ो. सो वेन एवर जब ये एफर्मेशन मैं बोलता हूँ, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ओके, तो एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच आई गेट, मैं उसको जाने नहीं देता. ओके. मैं उसको पकड़ लेता हूँ. आई फील कि मैं जो एंड मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो एवरीडे बोल रहा हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, आई थिंक वो एफर्मेशन वो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहा है. तो आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप जो बोलते वो यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स उसको अट्रैक्ट करता है. आई पर्सनली बिलीव, ये जल्दी बिलीव नहीं होगा, ये बहुत ही ऐसा फैंटेसी एंड ऐसे लगता है मैजिकल टॉक है, बट ऑनेस्टली फॉर मी इट्स पर्सनली ये वर्क करता है. एंड आई एम द पर्सन यू कैन सी थ्रू माई एजुकेशन सिस्टम. ओके. बेसिकली ऑल दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी. ओके. ये सारा एज मैजिक ही है मेरे लिए. मैजिक ही आया है, मतलब मुझे
मतलब इतना इजी नहीं होता, ये सारी चीजें जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो करना नहीं मिलता है लोगों को इतना इजीली। एंड मे बी द वे में मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से मैं खुद को जो एफर्मेशंस मैं यूज करता हूँ खुद के लिए, जिस तरीके से अपने आप को ग्राउंडेड रखता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करता हूँ, वो मेरे को ये सारी चीजें अचीव करने में हेल्प कर रही है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड वेरी पॉजिटिव, ताकि आप वो जो चीजें आपके लाइफ में जो भी अपने ड्रीम्स है, अचीवमेंट्स है, सक्सेस, आप उसको इजीली अचीव कर सको। सो दिस इज द कि एफर्मेशंस कैसे काम करता है। ओके, सो आई गिव यू एक थोड़ा सा साइंस बताता हूँ इसके पीछे का। ओके, तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि इसका साइंस ये है कि जो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, एंड न्यूरो साइंस, तो ये न्यूरो साइंस बेसिकली जो होते हैं, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसके स्टडीज करते हैं। ओके, तो ये दो लोगों ने मिलकर रिसर्च किया है कि जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं ना, तो ये जो हमारा ये आगे वाला जो पार्ट है, फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको ब्रेन का, तो यहाँ पे ना एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। तो जब हम एवरीडे वो एफर्मेशन हमारे लिए यूज करते हैं ना, वो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना उसको एक्टिवेट कर देता है, ओपन कर देता है। एंड जब वो ओपन हो जाता है ना, हम ऑटोमेटिकली क्या होता है पता है, जब भी हमारे लाइफ में कोई बड़ा सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम भी आएगा ना, तो हमारा ब्रेन हमको ऑटोमेटिकली रिमाइंड करवाता है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी हैप्पी। सो ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैप्पी हो, ओके, एंड आप पॉजिटिव हो, सो आप उस सिचुएशन को कैसे भी हैंडल कर सकते हो, कैसे भी टैकल कर सकते हो, कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली एक सिंपल सा ये एक साइंस है। एंड दूसरा मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, काफी लोग ने सुना होगा हिप्नोथेरेपी। ओके, सो हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, सो जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो कुछ ना कुछ इश्यू से जाते हैं जो उनके पास्ट लाइफ में हुआ होता है। ओके, एंड वो क्या होता है, हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड बोलना जाता है उसमें स्टोर होता है, जमा होता है। एंड जैसे ही वो कभी कभी ट्रिगर होता है, हमको बहुत तकलीफ महसूस होती है। तो जो ये हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सजेशंस देते हैं। सजेशन बेसिकली एक ऐसे पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स होते हैं उनके पास, जो बहुत सारे एफर्मेशंस के साथ, बहुत सारे पॉजिटिव उनके पास जितने भी वर्ड्स होते हैं वो फुल ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। एंड जब वो हिप्नोटाइज करते हैं, जब वो एफर्मेशंस बोलते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो स्टोर बिलीफ है, जो भी एक्सीडेंट हुए हैं, जो भी इंसिडेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट जाके फाइट करता है। एंड ये जो कॉन्स्टेंट, ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और थेरेपी लेते हैं, वो क्या होता है, एक मोमेंट के बाद वो जो एक्सीडेंट वाला जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड जो नया बिलीफ फॉर्म किया है हिप्नोथेरेपिस्ट ने, वो ऑटोमेटिकली वहां पे स्पेस ले लेता है, जिसके वजह से वो क्लाइंट इन स्टूडेंट उसको बेटर फील होने लगता है, वो अपनी लाइफ फिर से हेल्थी एंड हैप्पीली जीने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है साइंस का। काफी लोगों को पता होगा कि आज साइंस में जो है हिप्नोथेरेपिस्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर रहा है एंड किया है, ताकि जो हिप्नोथेरेपी है वो बहुत ही क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ टेक्निक है जो लोग उस थेरेपिस्ट के लिए जाते हैं। सो यस, ये दो एग्जाम्पल था जहाँ पे मैं आपको साइंस के बारे में बता सकता हूँ कि एफर्मेशंस कितना यूजफुल है, कितना वैलिड है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं। ओके, सो ओके, इसके पहले मैं जस्ट और शेयर करता हूँ कि मैं मेरे लाइफ में पर्सनली एफर्मेशंस कैसे यूज कर रहा हूँ, ताकि जस्ट आप लोगों को आइडिया आएगा। उससे पहले मैं जस्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी तक मैं आप जो भी मैं शेयर किया हूँ कि उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, या आप कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ आप बताना चाहते हो, तो प्लीज बोलो, ताकि जो लोग ये ज्वाइन किए उनको एटलीस्ट पता चले। Thank you so much, Sejil, for the thumbs up, encouragement, and other people's. No question, no comment, no आई statement. थिंक यू आर वेरी वेरी क्लियर, शायद इस वजह से क्वेश्चन नहीं हुए होंगे। सो आई थिंक दैट कैन बी वन थिंग।
Yes, Poonam. You are asking something to me? So, yeah, I also had this one question. So, what happens? So, for example, I start practicing affirmations, okay? But sometimes, Mm-hmm. not in a later stage. For example, I started like 3, 4 days or 1 week, and after that, I forgot to do Mm-hmm. my affirmations. As you said, it is a discipline, of course. But coming back again to it is quite sometimes difficult for me. Hmm. So how do I tackle that? Okay. So let me understand your question, Poonam. So basically, you So are saying that. Okay. I So just I'm rephrasing. Okay. 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 So basically, you are saying that there are some statement affirmation which you use. Okay. And after some time, some days के बाद you forget that. Okay. You're saying that. नो And उसके आगे आई और. एम मीनिंग कि मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करती हूँ कुछ Mm-hmm. चीजों के लिए आई डू इट बट थोड़े दिन बाद वो बोलते ना वो डिसिप्लिन आने से पहले ही इट गोज अवे वो प्रैक्टिस ही चली जाती है मतलब आई डोंट Mm-hmm. डू माई एफर्मेशन प्रैक्टिस ओनली सो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट how can I I go back to it and grab it again. हम्म. सो बेसिकली ये मतलब जैसे मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सुना छूट मतलब मुझे जाती खुद. है सिंपल वर्ड्स में. हाँ. हम्म. सो प्रैक्टिस छूट जाती है तो आई डोंट नो कि मे बी आजकल ऐसे मैं सुनता है कि बहुत बिजी लाइफ चल रही है लोगों की. ओके. सो आई नो कि वो जो एफर्मेशंस होता है या तो हम मेंटली यहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं, अदरवाइज हम ये जो बुक्स होते हैं उसमें नोट डाउन करके रखते हैं. तो आई सजेस्ट कि अगर ऐसे होता है, इफ यू वांट कॉन्स्टेंटली कि उसको प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस छूट जाता है, so what you can do, you can just keep the screenshot photo and keep on your screen, मोबाइल का जो स्क्रीन है उस पे, तो मे बी वो आपके लिए इजी हो जाए. एंड अगर ये आइडिया ऐसा लगता है नहीं वर्क करेगा, आई एम श्योर इफ यू वांट फ्रॉम योर हार्ट उसको प्रैक्टिस करना है, वो Yes. आपको कैसे भी हेल्प करेगा. Thank you, Ram. यस. थैंक यू सो मच पूनम. हेलो निखिल ब्रदर, हेलो, थैंक यू सो मच. ओके. सो ओके, आई शेयर कि ये जो एफर्मेशंस है अभी मैं शेयर करता हूँ कि मेरे लाइफ में पर्सनली वो कैसे मैं यूज करते आ रहा हूँ और मुझे कैसे हेल्प कर रहा है एंड क्या क्या चीजों में हेल्प किया. ओके. सो आई लेट्स से कि जब मैं स्कूल में था, ओके, तो जो मेरे मेंटोर्स थे, जो टचिंग लाइफ्स के जो मेंटोर्स थे, वो क्या करते थे, जो मेरे स्टडीज के लिए, ओके, लेट्स से हमारा ऐसे होता था कि मुझे माइंड मैप पूछा जाता था कि कहते थे कि नीचे दो तीन एफर्मेशंस खुद के लिए आप सोचो, ऐसे क्या है जो आप एवरीडे यूज करना चाहते हो. तो लेट्स से वो टाइम पे जब हम स्टूडेंट होते थे क्या थॉट आता है, मोस्टली स्टडी के रिलेटेड कि मुझे ये नंबर ऑफ परसेंटेज चाहिए. ओके. मैं ये सब्जेक्ट में बेस्ट करूं. तो बेसिकली उस तरीके के जो एफर्मेशंस जो होते थे वो मैं लिखता था. वो टाइम पे मुझे सपोर्ट भी मिलता था कि वो एफर्मेशन कैसे बनाते, मुझे भी आइडिया नहीं था कि एफर्मेशन होता क्या है. तो मेरे लिए तो वो ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा कि एफर्मेशन है, ऐसे कुछ है. सो वो मुझे मैं एफर्मेशन बुक में लिखता था एंड एवरी डे क्या करता था, मैं उसको रीड करता था. एंड जब उसको मैं रीड करता था, जब वो चीजें धीरे धीरे वर्क करती थी, तब जाके क्या होता था, मेरी उस पर बिलीफ होने लग गई, मेरा ट्रस्ट उस पर क्रिएट होने लग गया. एंड जैसे जैसे ट्रस्ट क्रिएट होने लग गया, क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मैं खुद के लिए खुद एफर्मेशन बनाना स्टार्ट करने लग गया. ओके. सो आई, तो वो थोड़ा सा बहुत पास्ट टाइप का, मैं आपको जस्ट करंट एक एग्जांपल्स देता हूँ. सो करंट एग्जांपल ये है कि लास्ट 1 ईयर से मैं मेरे जितने भी बुक्स है, ओके, जैसे कि लेट से मेरा जो वर्किंग डायरी है, डिफरेंट जो भी बुक्स है, वो हर बुक पे फर्स्ट पेज पे मैं बहुत सारे एफर्मेशंस लिख के रखता हूँ खुद के लिए जो कि रियलिस्टिक है. लेट मी, मैं आपको एक एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ. अभी जो ये मेरे पास बुक है, इस पे भी मैं एफर्मेशंस लिख के रखा रहूंगा. हम्म. ये देखो. ओके. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एफर्मेशंस में लिख के रखा हूँ. लेट्स से अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि टुडे आई एम फीलिंग स्ट्रांग. ओके. आई एम abundance, I'm creativity, I'm opportunity, I'm relaxed, I'm calm, I'm peaceful,
आई एम रीचिंग क्लोजर टू माई ड्रीम हाउस। ओके, तो बेसिकली ये जो एफर्मेशंस है मैं एवरी सिंगल डे इसको यूज करता हूँ। एंड आई डोंट नो ये मैजिक कैसे हो रहा है, ओके एकदम डिटेल में मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं शेयर कर रहा हूँ कि स्लोली स्लोली जो भी एफर्मेशंस मैंने क्रिएट किया है वो सारी चीजें मुझे धीरे धीरे मिलती है, मैं अचीव कर पा रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। सो ये जो आप लोग अगर देख पा रहे हो ये मेरा विजन बोर्ड है 2022 टू 24। ओके, सो उसको क्रिएट करने में मुझे काफी टाइम गया, बट उसको क्रिएट करने से पहले मैं बहुत क्लियर था, बहुत रियलिस्टिक था कि मैं क्या इंटेंशन क्या एफर्मेशन माइंड में रखते हुए मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस भी आए वो क्रिएट करने के टाइम पे कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं रहता था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, या वो टाइम पे मेरा दिल ही नहीं करता था कि मुझे वो क्रिएट करना है। सो वो एनर्जी के साथ मैं उसको कभी क्रिएट ही नहीं करता था, बिकॉज मैं बहुत अवेयर था कि मुझे उसको जो मेरा विजन बोर्ड है मुझे उसको कौन सा एनर्जी के साथ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी है जो आप काम करना चाहते हो वो बहुत मैटर करता है। सो मैं बहुत टाइम लिया and जब मेरी बहुत एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई तब जाके मैंने उसको क्रिएट किया बनाना। एंड हॉनेस्टली ट्रस्ट मी, वो 2022 का विजन बोर्ड मैंने क्रिएट किया, बट ऑलमोस्ट उसमें से ऐसे बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी मैं उसको रिसीव करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक। ओके, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मेरे को अभी से मिलेगा, बट मिल रहा है। सो अब ये नहीं पता कैसे मिल रहा है, बट मिल रहा है। सो थैंक्स वो। सो ये मेरा एक रियल लाइफ एग्जांपल्स है। यस। ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चंस है अब मेरे लाइफ के रिलेटेड में एज एफर्मेशंस को लेके, अगर आपको कुछ पूछना है कि जो एफर्मेशंस है मतलब एनीथिंग जो आपके माइंड में इस वक्त क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन राइट एंड आस्क, सो ताकि वो हम उसको आंसर कर सकें एंड फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाउ यू कंट्रोल योर एंगर? ओह, so thank you so much, Nikhil, for asking these questions. Yes, honestly I'm the angry person. Okay, मुझे भी एंगर बहुत आता है जब ऐसे situations होते हैं। एंड तो बेसिकली मैं एंगर के लिए क्या करता हूँ कि व्हेन आई गेट एंगर, ओके, सो एंगर एक ऐसा एनर्जी है, वो टाइम पे ना आपका जो माइंड है एक्सट्रीमली शट हो जाता है। ओके, और वो टाइम पे ऐसे फील होता है जो होगा वही सही है, इधर आप किसी को हिट कर दो, किसी को चिल्ला दो, कुछ फेंक दो, वो टाइम पे वही सब करने का दिल करेगा। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई हैव अ प्रैक्टिस कि जब भी मुझे एंगर आता है मैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करता हूँ, ताकि जस्ट जो मेरा एंगर है मैं उसको फर्स्ट रिलैक्स करूँ, क्योंकि उसका एनर्जी इतना स्पीड में आता है ना, पूरा ब्रेन सेट हो जाता है एंड आपको वो सिचुएशन में जो सही लगे वही करने का ऐसे दिल करता है। वो टाइम पे हम कॉन्शियस भी नहीं होते कि वो हमारे लिए सही है कि गलत। सो व्हाट आई डू, आई टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ 3 टाइम्स, बट 3 टाइम्स ऐसे नहीं कि 1 2 3, मैं 3 2 1 उल्टा आता हूँ, ताकि मैं जैसे उल्टा आता ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा वो जो एंगर है वो रिलीज हो रहा है। एंड वो एंगर रिलीज होने के बाद मैं वो सिचुएशन से दूर चला जाता हूँ। दिस इज माय पर्सनल प्रैक्टिस, मैं वो एनवायरमेंट में नहीं रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे रहूंगा स्टिल वो एंगर मेरा वापस से प्रोवोक होकर वापस बाहर आएगा। सो आई चेंज दैट एनवायरमेंट एंड गो समवेयर एल्स। सो सी निखिल की आप ऐसा क्या आपको अगर ये जो मैं अब मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर आपको वो प्रैक्टिस करना है तो यू कैन प्रैक्टिस, अदरवाइज आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका जो एंगर है उसको नॉर्मल स्टेट पे रखने के लिए, उसको रिलीज कम करने के लिए आप खुद ऐसे क्या कर सकते हो। और आप उसके अगेंस्ट आप कोई एक एफर्मेशंस भी क्रिएट कर सकते हो कि लेट्स से कि अगर आपको बहुत एंगर फील हो रहा है ऑन द स्पॉट, तो जस्ट यू कैन अफर्म इन योर माइंड कि आई एम रिलैक्स एंड काम। ओके, आई हैव अ कंट्रोल ऑन माय माइंड। सो बेसिकली वो टाइम पे क्या होता है, कंट्रोल भी नहीं होता हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे। ओके, सो यू कैन से लाइक दिस। और इफ यू वांट, आप अगर क्या कहते हैं गूगल भी करोगे एफर्मेशंस फॉर एंगर, आई एम श्योर आपको हंड्रेड्स ऑफ एफर्मेशन वहां पे इजीली मिल जाएंगे, एंड चूज उसमें से कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है।
सो पूनम आई थिंक कुछ लोगों ने अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो. So there is another question from Divya, I think. Uh, how to refocus or re-energize? It happens कि energy कम होती है to start writing affirmations. So this is one question. सॉरी मैं नहीं समझा, वापस से पूछो. How to refocus और re-energize? कभी कभी ऐसा हम्म. होता है कि एनर्जी मेरी कम हो जाती है जब भी मैं एफर्मेशन लिखने बैठ. हम्म. ओके. सो कौन है वो पर्सन? दिव्या दिव्या. ओके, सो जोशी हेलो जी. दिव्या. ओके. So Divya, so basically you are saying कि when you sit to write your affirmation, you feel the energy low. Okay. So basically it's a very important जो मुझे understand होता है मैं share कर रहा हूँ कि आप क्या energy के साथ वो affirmations लिखने बैठ रहे हो. Okay. So it's very important कि you have to understand कि क्या वो जो time है, वो जो situations है, वो एफर्मेशन लिखने के लिए परफेक्ट है. बिकॉज एफर्मेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव हम लिखते हैं. ओके. तो वो पॉजिटिव लिखने के लिए जो हमारा ब्रेन, जो हमारा माइंड है, वो बहुत काम एंड रिलैक्स रहना चाहिए, ताकि आप वो जो एफर्मेशन है उसको बहुत कॉन्सियसली, ओके, बहुत अवेयर होके आप वो स्टेटमेंट क्रिएट कर सको. एंड जब वो आप क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली वो टाइम पे आपका एनर्जी लो नहीं उल्टा और हाई होगा. ओके. जैसे वो लिखते ही आपको ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस फील होने लगेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग एफर्मेशन यू हैव टू बी इन द एनर्जी जो आपको हैप्पी पॉजिटिव फील करवाता है, ना कि जस्ट आप कोई भी सिचुएशन से आ गए, आप बैठ गए एफर्मेशन लिखने जा रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सिचुएशंस को जो है वो एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट रखो, आप खुद को कंफर्टेबल करो, ओके, खुद को रिलैक्स करो एंड देन स्टार्ट राइटिंग. I hope Divya this answers your question. Uh, Next question from Radhika. Can affirmation also help for overthinking? Can affirmations or think? Okay, yes, overthinking. Yes, it is. So basically let's say कि um, okay, so basically लेट्स से कि कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन में हो रहा है. ओके. सो बेसिक तो इसमें क्या होगा कि जो एफर्मेशन स्टेटमेंट हमने क्रिएट किया है, ओके, तो ओवर थिंकिंग के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अगर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग हो रहा है तो वो टाइम पे क्या होता है, बहुत इरिटेशन, बहुत चिड़चिड़ और बहुत एंगर फील होता है. ओके. जो बहुत नेचुरल है वो सिम्टम्स हमको फील होता है. सो व्हाट वी कैन डू, वो जो एफर्मेशन हमने अपने लिए पर्सनली जो क्रिएट किया है, वो एफर्मेशन को उसके अगेंस्ट जस्ट अपने ब्रेन में उसको रिपीट करना है. व्हेन वी कॉन्स्टेंटली उसको रिपीट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओवर थिंकिंग कुछ मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगा. ओके. बट मे बी हो सकता है वो अगेन ओवर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली आएगा. तो मे बी हो सकता है कि यू कैन आप अपना जस्ट अटेंशन वो जो ओवर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली आ रहा है जस्ट उसको दे दो थोड़े टाइम के लिए, ताकि उस वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो कि वो ओवर थिंकिंग हो क्यों रहा है, कि हम उसको बार बार इग्नोर तो नहीं कर सकते. ओके. आप जितना भी इग्नोर करोगे वो बार बार आएगा ही आएगा ही आएगा ही. तो जस्ट गिव योर अटेंशन कि एग्जैक्टली वो ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है. एंड एक बार आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लोगे, ट्रस्ट मी, ऑटोमेटिकली वो जो ओवर थिंकिंग है वो चला जाएगा. I think these were the two questions, Ram. We can continue with the session. ओके, थैंक यू. सो ओके. सो बेसिकली मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि आप लोग अपने लिए एफर्मेशंस क्रिएट कैसे कर सकते हो. ओके. तो देयर आर सम टेक्निक्स, ओके, जिसके थ्रू आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हो. सो लेट मी शेयर. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर कि जो आपका एफर्मेशंस है ना, वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए. ओके. एंड बहुत एंड वो शॉर्ट होते हुए वो एकदम इजी होना चाहिए कि आप उसको बहुत इजीली बोल पाओ. ओके. तो बेसिकली आपके टंग को आपके ब्रेन को ऐसे डिफिकल्टी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए उसको बोलते वक्त. ओके. लेट्स से कि आई एम हैप्पी.
ओके, ये मेरे बहुत इजीली बोल दिया। ओके, लेट्स से कि आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई ईट फूड, व्हेन आई डू जिम, व्हेन आई ड्रिंक वाटर। ये मेरे को बोलने को इतना लंबा टाइम लग रहा है। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका एफर्मेशन जो बहुत शॉर्ट होना चाहिए एंड आप उसको बहुत इजीली बोल पाओ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आपका जो ब्रेन है उसको बहुत अच्छे से याद रख सके। ओके, तो ऐसे ना हो कि वो एफर्मेशन इतना बड़ा है कि सडनली आप नेक्स्ट डे भूल गए कि वो एफर्मेशन मैंने क्या किया था, आप सोचने लगते हो अरे क्या था क्या था क्या था, अरे हाँ याद आया। ओके, सो इस तरीके से नहीं, वो एफर्मेशन ऐसा होता है कि जैसे आप सोचने जो आपको तुरंत याद आ जाए। ओके, एंड उसका जो साउंड है वो आपके हार्ट को कनेक्ट करना चाहिए। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि आई एम रिलैक्स, तो जब मैं ये बोलता हूँ मुझे खुद को फील करना हो एनर्जी, क्या मैं सच में रिलैक्स हूँ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि वेन यू जब आप वो एफर्मेशन क्रिएट करते हो, जब उसकी एनर्जी फील करते हो ऑन द स्पॉट, वो एफर्मेशन आपके ब्रेन में स्ट्रांगली बैठ जाता है, तो आपको उसको किधर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के, अगर उसको लिख के बेटर कंफर्टेबल जमता है या कहीं पे स्टिक, वो जो एफर्मेशन उसने क्रिएट किया है उसको स्टिक करके रखना है ताकि वो एवरीडे देख सके। ओके, तो सेकेंड पॉइंट ये था कि जो आपका एफर्मेशन है वो बहुत आपका ब्रेन याद रख सके और बहुत उसका जो साउंड है एकदम सिंपल हो। ओके, थर्ड, जो एफर्मेशंस है वो मोस्टली आपके अपने ऊपर होना चाहिए। ओके, सो बेसिक इट्स नॉट अबाउट कि आप एफर्मेशन यूज करो किसी और का बिहेवियर और बिलीफ चेंज करने के लिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एफर्मेशंस आप खुद के लिए यूज करो। ओके, आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो बट उसके कुछ अलग टेक्निक्स होते हैं, बट ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये खुद के लिए है। तो जो एफर्मेशंस आप क्रिएट करोगे जस्ट ट्राई टू वो आपके रिलेटेड हो। ओके, फोर्थ पॉइंट, सो लेट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने लिए क्रिएट करते हो तो वो एफर्मेशंस कैसे होगा। ओके, आई एम लविंग एंड पीसफुल। ओके, आई कम्युनिकेट इजीली विथ वार्मथ एंड जॉय। ओके, दिस इज अ पॉजिटिव एफर्मेशंस जो मैं खुद के, जहां पे आप नोटिस किए होंगे मैं मोस्टली यूज किया वर्ड आई एम। आई, तो बेसिकली ये जो आई या आई एम या आपका नाम आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा आपके खुद के एफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए। एंड ओके, एंड जो एफर्मेशन आप क्रिएट करोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि आप उसको प्रेजेंट टेंस में क्रिएट करो। ओके, तो नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में बेसिकली लेट्स से कि आई एम enjoying this session. Okay, I'm loving my free time. I'm I'm conscious and aware. Okay, तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है, जो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट करो वो मोस्टली आप प्रेजेंट टेंस में रखो ताकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, ओके, सो मैं जस्ट कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ एफर्मेशंस के। ओके, सो आई बिलीव इन माई ड्रीम्स, आई एम डूइंग माई बेस्ट इन एवरी डे, I love myself for who I am. Okay. I'm in charge of my own happiness. I accept 100% responsibility for my own life. The best is yet to come. I'm grateful for every day. I choose to be good mood. I choose to have a positive attitude. I believe in myself. I forgive myself for not being perfect. I make the best for every situation. I have control over my thought and feelings. I treat other with respect. Okay, so these are the some of the statement as a positive affirmations. Okay, so for yourself, okay, let's say okay, for your own self, so if you want to create affirmation, so what you can do, you can take help of some expert. Okay, let's say you can ask some of your mentors, your teachers, your parent
to help you to create affirmation for your own self. But remember, create affirmation which is very realistic. एंड जब आप उसको क्रिएट करोगे, प्लीज फील द एनर्जी इन योर बॉडी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक, ये ऐसे नहीं कि आपने एफर्मेशन जस्ट क्रिएट कर दिया बट उसका एनर्जी बॉडी में नहीं फील हो रहा है. ओके, सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी एफर्मेशन, फील द एनर्जी कि आपकी बॉडी को कैसा फील हो रहा है. सॉरी ऑडियंस एंड फ्रेंड्स फॉर द टेक्निकल इश्यूज. नेचुरल आजकल के लाइफ में होते रहता है. ओके, सो बेसिकली मैं ये कह रहा. ओके, कुछ कह रहे हो पूनम? नहीं, कंटिन्यू. ओके, सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ जहां पे आपको बहुत इजीली एफर्मेशंस मिल जाएंगे. ओके, सो ट्राई करो कि आज से आप अपने लिए एफर्मेशन सेट करना. ओके, एंड वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? सबसे बेस्ट जो आज पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, गूगल. ओके, जस्ट गूगल पे जाओ एंड फर्स्ट उसके पहले जस्ट थोड़ा सा टाइम देना, रिफ्लेक्ट करना कि आप अपने लिए, खुद के लिए, किसके लिए एफर्मेशंस क्रिएट करना चाहते हो. तो बेसिकली एफर्मेशंस उस चीज के लिए क्रिएट करो जो आप लाइफ में चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो. ओके, सो बेसिकली जब आप उसके रिलेटेड आप गूगल पे टाइप करोगे, आपको बहुत सारे एफर्मेशंस मिलेंगे. एंड जस्ट रीड, उसको रीड करो. एंड जब आप रीड करोगे ना, आपको स्ट्रांगली फील होगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसे एफर्मेशंस होंगे जिसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे. एंड वो एफर्मेशन आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए पिकअप कर लीजिए. एंड आप ये एफर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हो, लेट्स से कि आप उसको नोट डाउन कर सकते हो. ओके, सो एफर्मेशन को नोट डाउन करना एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहाँ पे वो और फटाफट वर्क करता है. तो जब हम लिखते हैं ना उसको, वो और स्ट्रांगली जो हमारा ब्रेन होता है उसमें स्टोर कर लेता है. ओके, तो आप उसको लिख सकते हो या आप कहीं पे कार्ड बना के आप उसको स्टिक कर सकते हो. लेट्स से कि आप एवरीडे आप वॉशरूम जाते हो या आप मिरर के पास जाते हो या विंडो के पास जाते हो, तो आप वहां पे स्टिक करो ताकि आप उसको एवरीडे देख सको. ओके, एंड आप अपनी स्क्रीन पे रख सकते हो. और बहुत सारे आजकल ऐसे हो गए कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखोगे कि ऐसे बहुत सारे पेजेस है जहाँ पे वो जस्ट एफर्मेशंस के एवरीडे एक एक स्टेटमेंट डालते हैं. तो आप उसको फॉलो कर सकते हो ताकि आपको उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस मिलेंगे. आई एम श्योर काफी लोग होंगे यहाँ पे जो ऑडियंस है, वो कोई ना कोई सोशल मीडिया पे एक ना एक एफर्मेशन पेज फॉलो करते होंगे या कोट की पेज फॉलो करते होंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिलता होगा. सो आप वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू कर सकते हो. एंड उसके अलावा अगर आपको और कोई प्लेटफॉर्म पता है तो प्लीज आप उसको फॉलो करो, और आप चाहिए तो उसको शेयर भी कर सकते हो हमारे साथ किसी थ्रू. सो यस, ये था. एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि एफर्मेशंस कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, मन में बोलना चाहिए, बाहर बोलना चाहिए. ओके, मैं आप लोगों का क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, तो आप ऐसे कुछ पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं. So somebody have requested to compile this affirmations, whatever आपने जो भी अभी बताया, जितने भी affirmations read किए, वो एज अ पोस्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने के लिए हमको रिक्वेस्ट आई है. सो वी विल डेफिनेटली डू दैट. थैंक यू पारुल. Also, Ram, I have a question. You Yes. mentioned earlier that we have to make our statement in present tense. Why is it important? Okay.
So why it is important to create statement in the present tense? Honestly, I don't know answer for this. Okay. If you all have any questions, please comment down. We will try to answer them. Yes. Okay, if you don't have any question, okay, or if you don't want to comment, so I would like कि जो लोग भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, ये जो लाइव सेशन है, वो अपने खुद के लिए एक एफर्मेशन जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि जस्ट आई कैन रीड कि यस आप लोग ने समझा कि एफर्मेशन क्या होता है. सो यू कैन जस्ट टेक टाइम, ओके, थिंक कि आपके लिए कोई एक एफर्मेशन एंड जस्ट वो सोच के जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो. बहुत सामने ही है, देखो ऐड कमेंट्स करके भी दिखता होगा आपके स्क्रीन पे. कुछ तो क्वेश्चन है क्या ये? Changing affirmation according to our changing choice is good. Yes, of course it is good. So basically what you can do, let's say कि एक ऐसा कोई circumstance है, ऐसा कोई situations है, okay, जिसके लिए we have created affirmations, okay, you have created affirmation, and after the some time if you feel that वो situations, वो जो circumstances थे वो heal हो चुके, okay, वो settle हो चुका है, and एंड कुछ नए circumstance situations क्रिएट हो गए, तो यू कैन क्रिएट एफर्मेशन फॉर दैट. तो बेसिकली ये ऐसे ही वर्क करता है. एज यू ग्रो कीप चेंजिंग योर एफर्मेशंस, so it will help you to grow more. Nisha, yes, okay. Every day is new day. Wow. I'm blissful soul. Yes, I'm patient. I'm enjoying. Okay, so yes, मेरे आज का जो बैग है, ओके, नॉलेज का, उसमें इतने ही इंफॉर्मेशंस था. अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं. Okay. So thank you so much everyone for joining this live session, and I hope this affirmation tools will help you to apply in your personal life. Okay, and if you have any अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आफ्टर टेकिंग सम टाइम, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प है, या कुछ हेल्प चाहिए इन एफर्मेशन रिलेटेड, ओके, you can go on touching lives page, or you can ask or comment, so I can through uh, on that page I can answer your question and anything. Okay, so namaste and thank you so much. Bye bye. Thank you, ma'am, for the wonderful session. It was really informative and very, very good. And I have also done a lot of things out of this. So thank you so much. Thank you. Thank you, Bye bye. everyone, for joining us. Bye bye.